Good morning, each and everyone. Welcome you to Khaida Park or King Shahid Bhagat Singh Park. Installing done sanitation is in operation along with my friend आशीष. ये हमारे साथ जुड़ता है साथ में कोई तुम भी जुड़ सकते हो, कोई भी जुड़ता है हटता है. अब हमारे सामने एक युवा है और इसने बड़ी अच्छी बात बताई. सर मैं टीचर भी हूँ और मैंने देखा था बिहार में ऐसे लोग भी हैं जो कि 10 में पढ़ता है, 10 से नीचे वाले को पढ़ाता है. जैसे मैंने भी पढ़ाई की, जानते हो इसकी दिक्कत थी. क्या करता था, ट्यूशन करता था. उस समय 15 रुपये मिलता था मुझे. 15 रुपये घर घर जा करके. नहीं, 15 रुपये का वैल्यू था. वैल्यू कैसे था, मुझे 10 पैसे में चाट पूरे प्लेट में मिल जाता था. अभी मिलता है 100 रुपये में नहीं मिलेगा, वो क्वालिटी अभी भी नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे क्या होता, पैसे का डिवेल्यूएशन हुआ है ना. उस समय सैलरी अगर 60 रुपये भी था तो लोग आराम से रहता था. अभी लाख रुपये भी होता. हाँ, अभी लाख रुपया भी होता है तो कम पड़ता है ना. तो चलो ये तो पुरानी और नए की बात होगी. I'm 64 plus. In January I will be just 65 like that. For the last 40 years I have been in the profession of teaching like that. Right from tutor to teacher to lecturer to, you can say it was the right now retired teacher too. Retired teacher and homeopathy doctor too. अब यहाँ मैं partly हिंदी partly English चलेगा है ना. No problem. अब ये first of all you simply give your introduction. My good name is Aman. हाँ. I have done my schooling from Richard's Public School till secondary. Yeah. I am currently doing from NIS board my senior secondary course. Yeah. And I am also teaching in an institute till class 8. Till class 8. Could you tell, suppose the people like me, है ना? Can I just give my service to your institution? Whatever institution is there, it is difficult. I know it. It's not difficult. So basically, I have to take permission from the sir. Yes, I simply have got a modus operandi. Upon a coaching, no master, no servant. Everybody is partner. Yes. Whatever expenditure is there, you simply share it. Whatever income comes, you share. Keeping some of the emergency fund like that. Yes. So that you will be just giving your best. Yes. Suppose you are given 5,000 rupees, but you are actually exploited like anything. Would you like to give your best? No. I listen to the very tale of the teachers. Simply they tell it about that they are getting 4,000 or maybe 3,000 or maybe 6,000 rupees a month in a school. Is it justified? Is it too less? I meet the teacher in course of I met you. One of the teacher is there, particularly in private schools. This is too much less. It's just a thing. He told, sir, for the last 4 years I have been serving in a private school. I was given 4,000 rupees. Right now I have joined the direct service, direct business you can say. Now I earn 30,000 rupees. It was the just you can say, just testimony of that teacher you can say. If you would like to meet that one, certainly I will make you to meet that. Just go leave it. Usko छोड़ो. That is not our problem. Our problem is to how to get the solution. है ना. तो अब यहाँ पर एक जैसे सीधा हिसाब लो. ऐसा तुम्हें नहीं लगता है कि हम अभी जो है what about your vision about India after 10 years? 10 साल के बाद कैसा भारत देखना चाहते हो? Well developed. जैसे? Much cleanliness and globalization and development. We have reached just moon you can see. हम लोगों ने चांद पे पहुंच गया हिंदुस्तान. लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी हम पिछड़े हैं? पिछड़े इस तरह से जैसे ये भी उत्तम नगर दिल्ली का पार्ट है. आप यहाँ से विकासपुरी चले जाओ, साफ दिखता है. और आगे बढ़ो और साफ दिखता है. क्या दिल्ली का उत्तम नगर साफ नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. नहीं, कैसे होगा? कैसे? तो एवरीवन हम तो बोलते हैं, बट देयर इज वन थिंग. एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का नहीं होता. वो सोचता वो करेगा, वो सोचता वो करेगा, कोई नहीं करता. कहीं से शुरू करो. कहीं से शुरू करो. हमने एक मिशन बनाया है पार्क के बाहर, सुन लो उसको. चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, है ना. करना क्या है, कुछ नहीं. तुम्हारे मोहल्ले में जो गंदगी उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो और कंसर्न डिपार्टमेंट को रेफर कर दो. या भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने एक्सपेरिमेंट किया. आप देखते हो उत्तम नगर वेस्ट के सामने में बहुत गंदगी था. उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो था ना, नाक बंद करके. एक दिन हमने वीडियो बना कर लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है ना. जब वहाँ इतनी गंदी है, बाकी दिल्ली का क्या होगा? दूसरे दिन साफ हो गया, एक चौकीदार रख दिया गया, अब गंदगी नहीं हो रहा है. हो गया ना. मेट्रो में भी देखता, वहाँ पे लिखा था क्या, ये स्मोकिंग इज जस्ट पनिशेबल ऑफेंस. उसका लिया, सामने में दुनिया भर का सिगरेट का जो रेफर है वो दिखाई दिया. अब वो भी साफ होता है. जहाँ भी किया साफ हो रहा है. तो अगर तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना. हिंदुस्तान आपका भी है, हमारा भी है, ठीक ना. अब हमने एक सपने देखे हैं, अब इसको बोल रहा हूँ. हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो,
हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? बहुत सही, 5 सेंटेंस मैंने ठीक कर लिया, 5 सेंटेंस मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक ना। तो उसी तरह जैसे कि हम ये भी बोलते हैं, हाँ देखो जैसे बोलता रहे, बोलने दो उसको से, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, है ना। लंबी खोखली बकवास भाषण कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। आज भी तुम कभी उल्टा के देख लो, लगभग 18 करोड़ लोग ऐसे हैं, 18 करोड़ जिनको रात को खाना नहीं मिलता है डिस्पाइट द सिस्टम। तो वो भी तो हमारे हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। ये बच्चे जो यहाँ पे आते हैं पार्क में, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्मोक करते हैं, वो किसका है सर? कहाँ का है? इंग्लिस्तान का है, बांग्लादेश का नहीं, यहीं का है ना। उसको बनाया किसने? हमने आपने, है ना। जब देख के भी इग्नोर हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि चाहते हैं कि उसको वहीं पे रहने दो। और एक नेक्सस इसको मान के चलते, मिली भगत में इसको पढ़ने मत दो। ये पढ़ लेगा तो फिर पूछेगा सवाल पूछेगा। हम चाहते हैं 100% एजुकेशन, लेकिन कैसे होगा? स्कूल में एनरोलमेंट की वजह से होगा, न कि सही मायने में प्लेटफॉर्म पे ला करके उसको लाना पड़ेगा, है ना। लाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो तुम पढ़ाते हो, 5-10 मिनट इन बच्चों को दे सकते हो, मोटिवेशन कर सकते हो ना जी। अगर 10 भी सुधर गया तुम्हारा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा क्या बनना चाहते हो? एक छोटा सा बच्चा है, क्लास 1 में पढ़ता है, खुश कर दिया, बोला मैं कार बिक्री करना चाहता हूँ। क्यों? 2 लाख कमाऊंगा ना, है ना। बढ़ के क्या करोगे? शोरूम खोलूंगा। कहाँ खोलोगे शोरूम? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। वो बच्चा जरूर करेगा। यहीं पे बैठा था 3 बच्चा, तीनों माँ फादर नहीं था, तीनों ऐसे बैठे थे, तीनों भाई बहन। माँ सब फल बिक्री करके उसको पढ़ाती है। हम बच्चा तुम क्या बनोगे? तो साइंटिस्ट। उसको साइंटिस्ट मालूम है तब ना जी। नहीं तो कहाँ बच्चा बताएगा? सब्जी वाले का बच्चा अगर साइंटिस्ट बोलता है, कौन जानता है उसी में से कोई अब्दुल कलाम आज़ाद निकलेगा? सही बात है। कोई जानता है क्या? और यहाँ पे कहावत है, डिफ़िकल्टी इमिनेट्स पर्सनैलिटी। जब तक लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे तो पर्सन नहीं होगा। अब साल भर से मैं तुम्हारे पार्क में, और साल भर पहले इतनी गंदगी थी, जहाँ था वहाँ रेशियो कम हुआ ना जी। कुछ चीज़ें हुई, मैं इसको वीडियो बना कर अपलोड भी करता हूँ। अपलोड इसलिए करता हूँ और ये भी बोलता हूँ कि भैया जो इससे रिलेटेड हो, MP हो, MLA हो, पार्षद, उसको देखो। ये पार्क सबका है, 15 साल का है। थोड़ा भी किया होता तो पार्क चकाचक हो जाता। क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं है ना भाई। लोग सोचते हमको क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना। तो फिर कहीं होगा। एक कहावत तुमने पढ़ा होगा इसको, लियो टॉल्स्टॉय का, उसने बड़ी अच्छी लाइन कही है, स्पार्क निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस। चिंगारी को हम एकदम हाँ, आज तुम्हारा घर नहीं जल रहा है, लेकिन कल को तुम्हारा भी घर जलना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते हैं। लोगों को कम से कम बोल तो सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे जैसे को लोग, अंकल अरे मुझे भी तो हिंदुस्तान छोड़ के जाओ बढ़िया वाला, ये झगड़ते वाला हिंदुस्तान क्यों बोल रहा? क्या गलत नहीं बोल रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि हिंदुस्तान अभी जैसे है, अभी जितना मारामारी और भी बढ़ेगा नहीं? एक जॉब के लिए कितने लोग जाते हैं। अच्छा, हम जॉब की जो बात करते हैं, जॉब क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? हाँ, अब देखो इसका रास्ता मैं बताता हूँ, थोड़ा सुन लो। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि सबसे बढ़िया जॉब क्या है, उसका जवाब आएगा IAS, इंडिया सिविल सर्विसेज कह सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ नेता। क्यों? ये IAS भी वहाँ जा कर के उनका फाइल ढूंढने लगता है। तो आप वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हो? सही बात है। अब जैसे मान के चलो हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, है ना। उनका एज खत्म हो गया, कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो ताश खेल रहे हैं, या घूम रहे हैं, या कोचिंग चला रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि IAS तो बनाते हो, बेटर लीडर क्यों नहीं बनाते? बेटर लीडर ही बनाओ। आप भी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते? वो भी तो नौकरी है ना जी, वो भी तो नौकरी है, चाहे वहाँ है, क्योंकि उनको वेतन मिलता है। वो भी लेबर है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। एनीबॉडी डज एनी वर्क, मे बी विथ माइंड और मे बी विथ हैंड, दे आर लेबर, है ना। आम टीचर, आम ऑल्सो लेबर, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेबर, बिकॉज दे आर सैलरीड। समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या है, अब वहाँ पे एक बच्चे से पूछा था, और ऑर्गेनिकल इंजीनियर था, यहीं जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ। तो बोला सर हमको मार देगा। हम कोई नहीं मारता किसी को, जब तक तुम्हारा समय पूरा नहीं होगा तो नहीं मारेगा कोई, है ना। मुझे भी जब स्कूल में था कई बच्चे बोला सर आपको मार देगा। हमने क्यों मारेगा? तो आप नकल नहीं करने दें। हमें बिल्कुल नहीं। आज वही बच्चा बोलता है आज आप नहीं होता तो हम अच्छा ऑफिसर नहीं बनता, अच्छा टीचर नहीं बनता, है ना। नकल करके क्या करेगा, है ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जब हम टीचर होकर बच्चों से डरेंगे तो हम टीचिंग क्या करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब यहाँ से थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास एक सॉल्यूशन है। जैसे राम मंदिर बनाने के लिए लोग पैसा देता है ना जी। हमारे पॉपुलेशन कितने हैं? 145 मान के चलो, 145 करोड़। एक आदमी 1 रुपया देता, कितना हो जाएगा? 145 करोड़। कम मंदिर बना सकते हैं, रोजगार मिल सकता है ना। हम इधर क्यों नहीं सोचे? हर बात में हम सरकार पे ही डिपेंडेंट क्यों रहे हैं? जैसे पार्क ही है,
यहाँ लोग 100-100 रुपया देते हैं, 1-1 रुपया भी अगर देता है उसको जोड़ो, क्योंकि 1 रुपया देगा तो उसको लगेगा पार्क हमारा है ना, और वो गंदा नहीं करेगा। मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? सही बात। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान लो इस हाथ में हमारा अगर घाव है, तो इसका इलाज करने काट के फेंक देंगे, इलाज करेंगे। हाँ, तो जैसे मान लो जो समाज हमारा नशे में डूब गया है, उसको क्या करोगे? बदनाम, उसको गाली दोगे ना कि उसको इलाज करोगे? सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना, बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। जैसे हमारा तुम्हारा मिलना पहले से प्रीडेस्टिन था, पहले तो नहीं टोका मैं पार्क में तो साल भर से आ रहा हूँ, और रोज़ मैं 8 आदमी से, नया आदमी से मिलता हूँ। ये कहता हूँ भैया, आज़ादी के 78 साल बाद भी माथा नीचे करके क्यों चलते हो? ऊपर करके चलो, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब माथा नीचे करते हो, दो ही बात होती है, या तो तुम्हें डर लगता है कोई मारेगा, या तुमने गलत किया इसलिए होता है, या फिर तुम्हें लोग पसंद नहीं है। जब लोग पसंद नहीं होगा, जब नेचर ने हमको साथ साथ बनाया। अब एक लॉजिक की बात करता हूँ, क्या मैं व्लादिमीर पुतिन को छू रहा हूँ? नहीं छू रहा हूँ। बोलो कैसे? माई बॉडी टचेस ग्राउंड, ग्राउंड टचेस मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, देयरफॉर आई टच मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। जब प्रकृति ने मुझे ऐसा बनाया, सबके साथ जोड़ के रखा है, और तुमने पढ़ा ही होगा, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेंज, है ना, चाहे वो बात करे नहीं करे, कहीं ना कहीं जुड़े। प्रकृति ने जब आपको जोड़ रखा है, तो आप बांटने वाले कौन होते हैं? हाँ, सही बात। गलत बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ ना। अब थोड़ा पढ़ाई की बात कर लें। मैं जब पढ़ाता था तो उस समय ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, और अभी थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई है। पुराने नए में क्या फ़र्क है? क्या लगता है ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी हो कितना फ़ायदेमंद है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब कुछ चेंजेस आप कहना चाह रहे हो? जैसे मैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही पढ़ रहा हूँ ना। चेंजेस है आपके हिसाब से न्यू और ओल्ड? अब जैसे मैंने देखा एक बच्चे का तुम्हारा मैथमेटिक्स का किताब, 40 फॉर्म में पहले था वो, नहीं कोई भी एक किताब, मतलब क्लास 5 में चलता हुआ किसी बच्चे को, मैं ऐसे किसी एनजीओ में आया था देखने के लिए, उसने मुझे इनवाइट किया था पढ़ाने के लिए। अब छोटे बच्चों को तो मैं पढ़ाता नहीं, है ना, तो उसमें मैं देख रहा हूँ उसने मैथमेटिक्स को पिक्टोरियल बना दिया है। पिक्टोरियल कहने का सीधा सा हिसाब बच्चा है, जैसे मान लो हमारा एक नाती है, 1.5 साल का है, उसको पूछेगा वेयर इज योर नोज, वो तो नहीं समझता, ये रह जाएगा, वेयर इज योर ईयर यहाँ पे। लेकिन ये भी तुम्हें नहीं लगता कहीं ना कहीं जाती है? 1.5 साल 2 साल बच्चा हुआ नहीं, उसको माथे पे प्रेशर दे रहे हो। अच्छा, एक बात और तुम्हारे माध्यम से मैं उन गार्जियन को कहना चाहता हूँ जो स्कूल जाते हैं, आप बच्चे से प्रेम करते हो, बहुत बढ़िया है ना, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उसके जो बैग ढोते हो उसको बंद करो, वो बच्चों के कंधे में ही दो, कंधा मजबूत होगा। दूसरी बात, प्यार के चक्कर में उनको इतना खिलाते हो कि जब रास्ते में चलता है तो इधर चर्बी उधर चर्बी उधर चर्बी, जब बड़ा होता है तो उसका पैर इतना भारी हो जाता है कि चल नहीं सकता है। इसको बदल सकते हैं ना, है ना। उसके लिए भी हमने एक टैगलाइन बनाया, सुन लो ध्यान से, इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए, है ना। अभी तो मज़ा आ रहा है फास्ट फूड खाने में, ये में वो में, जब वजन बढ़ जाता है तो घुटना नहीं चलता, रास्ते में चलते हो दर्द होता है। इससे तुम बच्चों को बचा सकते हैं ना? नहीं बचा सकते। अब क्वालिफाइड हो, प्यार करो, लेकिन खाना उतने ही दो जिसको रिक्वायरमेंट है, और ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा फास्ट फूड देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उन गार्जियन को बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आज हर आदमी टेंशन में है, चाहे जो भी हो। उस टेंशन को रिलीज करने का एक ही उपाय है, रिलीज योर टेंशन। हाउ? इसके लिए भी टैगलाइन है, सुन लो इसको, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना होए। अब बोलो किसको बताएं हम? इस पेड़ को पकड़ लो ना। हेलो माय डियर प्लांट, आई एम दिस आई एम अमन, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, आई वांट टू टॉक टू यू। बात करो। 1 महीने बाद आओगे तो वहाँ जाते ही तुम्हारे पैर ये पेड़ हिलने लगा है, क्योंकि इसमें भी लाइफ है, इसमें भी लाइफ है, ठीक ना। मैं इस ट्रैक पर तो जा रहा हूँ। अब एक बात, पार्क में हूँ तो पार्क के बारे में थोड़ा बात कर ले रहा हूँ। ऐसा क्या होगा पार्क एकदम सुंदर हो जाएगा? थोड़ा सोचो। जैसे मैं यहाँ पे आता देखता हूँ, किसी कोने में लोग क्रिकेट खेलते हुए, किसी में फुटबॉल खेलते हैं, और आपस में रोज़ तना तनी, है ना। तो कर चलो, ये तो लाइफ का पार्ट है, कोई बात नहीं। रोज़ सफाई करते हैं, फिर भी देख लो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ देख लो, आप CCTV कैमरे की निगरानी में है, यहाँ पूजा पाठ का सामान या जो भी हो, ठीक उसके नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या CCTV यहाँ पे नहीं है, या है भी तो एक्शन में नहीं होगा, है ना। तो ये डुप्लीकेसी लाइफ में क्यों? सही बात है। जो आप बोलते हो उसको क्यों नहीं करते हो, है ना। और मैं यहाँ भी उनको बोलते हूँ, आदेश अनुसार लिखा है, ठीक आपके नाक के नीचे में कूड़ा पड़ा हुआ है, और मैं इसे वीडियो बना रहा हूँ, इसको देखो उन आदमी का CCTV है तो उसके ऊपर एक्शन लो, चाहे जो भी हो, है ना। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, सही जा रहा हूँ ना। अब जैसे पार्क में हमने देखा कि बड़े लोगों के लिए, देखो वहाँ पे ये वीडियो बनाने से फायदा, यार देख लो एक फ़ायदा हुआ कि ये पे नया तुम्हारा ये देख रहे हो, ये ओपन जिम खुल गया, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, टूट फट गया है। जो पुराना था ठीक था, अच्छा है ना, कुछ बने हैं। तो तुम्हारा कोई सलाह सुझाव है? जैसे बच्चों के लिए मुझे कुछ नहीं को मेंटेनेंस बना के रखनी चाहिए, पीपल को हाँ, ये तो चाहिए। तो चाहिए क्या होता है, जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तो नहीं।
जब तक अनलेस अनटिल वी जस्ट टेक इनिशिएटिव, और यू कैन से चैरिटी बिगिंस एंड होप। जैसे मुझे भी रोज़ सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, तो हमने कहा एक काम करो, कम्युनिटी बनानी चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए, कम्युनिटी भी बनी है, कमेटी भी बनी है, लेकिन हमारा सोच है ये गवर्नमेंट का पार्क है ना जी, इट शुड बी गिवन टू गवर्नमेंट, लेट गवर्नमेंट ऑफिशियल हैंडल इट, है ना। समय पे पार्क बंद हो, समय पे पार्क खुले। जो आदमी पार्क में जैसे कोई नहीं होता मीठ खाने पीने का सामान लेकर आता उसको वहीं रोक दो, है ना। जो अनवांटेड एलिमेंट उसको वहीं रोको। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन जब लोगों की आदत हो जाएगी तो खाने पीने का सामान लेकर पार्क में नहीं आएगा। कभी अक्षरधाम मंदिर गए हो? आपका सब कुछ खुला लेता है, खाली पैसे छोड़ करके बाकी सब निकाल लेता है, पानी वानी सब। क्या कारण है? एक तो बिजनेस भी है, अंदर जाएगा तो कुछ खरीदेगा, है ना। अपना खाना लेके जाएगा तो गंदा करेगा, खरीदेगा भी नहीं, एक ही रीज़न है। तो जब वो सोच सकता, आप क्यों नहीं सोच सकते? आप भी सोच सकते हो ना। सब कोई है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ सब कुछ जो है वो ट्रैक पे नहीं है। ट्रैक पे तभी आएगा जब हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे, है ना। जैसे हमने बताया था, चलो जागृत जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, ठीक ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो इस पार्क में जैसे मान के चलो वो जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो वहाँ पे, ये दिख रहा है दूर में, वो सब ऐसे स्ट्रक्चर है, वो सब का सब टूटा हुआ है। जो भी उस बच्चे उस पर चढ़ते हैं, कभी किसी तरह एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकता है। जैसे यहीं पे देखो, ये झूला बनाया गया था हम लोगों के चंदे के पैसे से, फिर इसको इसलिए हटा दिया कि उसमें बड़े लोग भी झूलने लगे। तो कल बच्चों को देखा, उसने क्या किया कि जुगाड़ में तार बांध दिया, तार बांधने का झूला बना लिया। तो जुगाड़ में तो हम उस्ताद हैं, है ना, लेकिन सच्चाई को सामने लेने में उस्ताद नहीं है। मानते हो इस बात को कि नहीं? चलो, अब लंबी बातें होगी। कुछ उन विद्यार्थियों को कुछ सलाह दोगे जो पढ़ने से भागते हैं या स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है? क्या बोल सकते हो? पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। अब अच्छा नहीं करना चाहिए। हाँ, या और कांट यू से इट ओवर दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस, इट लास्ट, हाँ, इट लास्ट टिल यू ब्रीथ लास्ट, है ना। हाँ, उसके बाद भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं यार, है ना। गलत नहीं बोला ना। अब पार्क के लिए हमने कुछ टैग लाइन बनाया, हमारे साथ बोल दो, उसमें कुछ नहीं है। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? सही है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। तुम्हारे 2 मिनट, वो पॉइंटर देख रहे हो सफाई करने वाला, जो अभी हमने यहाँ पे गाड़े हैं, ये देखो ना, ये हाथ भी नहीं लगाना है, हाथ भी नहीं लगाना है, प्लास्टिक उठा लिया है, ठीक ना। 1000 आदमी आता, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक, 2 मिनट में पार्क साफ, ठीक ना। गलत नहीं है ना। इसके बाद हमने बनाया है सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। कहने का मतलब, आप कुत्ते लाते हो, पढ़े लिखे हो, बढ़िया कपड़ा पहन रखे हो, ट्रैक पे गंदगी फैलाते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। आप पूजा करते हो, पूजा का सामान ला के पार्क में फेंक देते हो, ये भी अच्छा नहीं है। मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा अगर अच्छा नहीं होगा तो आप भी बोलोगे कैसा टीचर है, बोलोगे ना, है ना। इसके बाद हमने लाइन बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, कोई भी निगेटिविटी मत करो, ठीक ना। फिर हम नहीं बोलता हूँ थोड़ा बाहर निकल करके, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, हमने वैसे भारत के सपने नहीं देखे जो जहाँ एक दूसरे से लोग परहेज करते हैं। दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में कई लोग रहते हैं, लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, है ना। ये अच्छी बात है क्या? और ये यार वेद की बड़ी अच्छी लाइन है, बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस। ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस, क्राउड तो है लेकिन लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ऐसे हिंदुस्तान का हमने सपना नहीं देखा था। सपना क्या देखा था? जहाँ सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, वह भारत देश था मेरा, वह भारत देश है मेरा, होना चाहिए ये, ठीक ना। और जैसे तुमने भी सुना होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मैं हमारे टाइम में ही बोलते थे, आज भी बोलते हैं। एक दिन कब आएगा? जब हर हाथ को काम होगा, हर माथे पे छत होगा, हर देह पे कपड़ा होगा, हर पेट में अनाज होगा, वह तभी होगा। और तब होगा जब आप उसको रेशियो प्रोपोर्शन में बनाओगे तब। कोई एकदम माउंट एवरेस्ट है तो कोई छोटा सा हिल भी नहीं है। मान रहे हो नहीं? क्या हमारा उसके प्रति कोई ये नहीं है कि नहीं? जैसे हम रास्ते में चलते हैं, गाय को छोड़ देते हैं वो मेट्रो स्टेशन के पास, ये ठीक है क्या? नहीं ना, ठीक। अब हमने लास्ट लाइन किया है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। क्या गलत है? सही बात। दिस मच, थैंक यू वेरी मच भाई।